Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 7th of our English grammar book, that is preposition. So what is preposition? Preposition is a word placed before a noun or pronoun to indicate place, direction and source, as on, in, at, under, upon, into, from, etc. मीन्स प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं और ये हमें नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन के बारे में, उनकी प्लेस के बारे में, उनके सोर्स के बारे में बताता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have prepositions of place. So let's understand it with some examples. Like first one is, you can see in this picture the ball is on the box. The ball is on the box. So here the word on is a preposition because it tells us about the place or direction of the ball, that where the ball is. The ball is on the box. Then next we have, in second picture you can see the ball is in the box. The ball is in the box. So here the word in is a preposition that tells us about the position of the ball. The ball is in the box. Then we have next, the ball is behind the box. In this picture आप देख सकते हो कि जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है. The ball is behind the box. So here the word behind is the preposition. So means कि ऐसे words like on, in and behind, ऐसे जो words हैं जिससे हमें पता चलता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन का, कि कोई चीज़ जो कहाँ पे है उसकी प्लेस के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, उनको हम क्या बोलते हैं? prepositions of place. ओके, या फिर prepositions of direction. सो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिए, तो आप अपनी बुक में और भी देख सकते हो. ओके, द नेक्स्ट वी हैव prepositions of time. So the prepositions that tells us about the time of noun or pronoun, that or time of action, is called the prepositions of time, like in, at and on. So mainly there are 3 prepositions of time: in, at and on. So you can look at this diagram for better understanding. Like first, let's start with the at. So we use the preposition at for the short period of time or for particular time. Like यहाँ पे मैंने क्लॉक बनाया तो इससे शो हो रहा है कि जब हमें टाइम बताना होता है तो हम क्या preposition यूज़ करते हैं? at. Like at 2:30 PM, at 4 o'clock या फिर at night, at noon. तो जब भी हमने जो है टाइम के बारे में बताना होता है तो हम preposition at यूज़ करते हैं. ओके, देन अगर हमने उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय की बात करनी है, लाइक अगर हमने डेज एंड डेट्स की बात करनी है तो हम ऑन preposition यूज़ करते हैं. ओके, सो यू कैन सी हियर लाइक ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन 1st June, ऑन 15th of August. तो मीन्स जब हमने डेज़ की या फिर डेट्स की बात करनी होती है देन वी यूज़ द preposition ऑन. देन नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा समय और बढ़ा दें, सो व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द मंथ, ईयर एंड सीजन, देन विल यूज़ द preposition in. For example, in January, in morning, in 2009, in 1947. या फिर अगर सीज़न हो गए, इन द स्प्रिंग सीज़न, इन विंटर्स. ओके, देन इन द नेक्स्ट सेंचुरी. तो जब हमने मंथ, ईयर या सीज़न की बात करनी है तो हमने इन preposition यूज़ करनी है. ओके, सो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जब हमने नाइट या नून की बात करनी है तो हमने एट preposition लगानी है, लाइक एट नून, एट नाइट, एट नून.
एंड जब हमने मॉर्निंग की बात करनी है देन वी हैव टू यूज़ इन द मॉर्निंग। ओके, सो अगर तो हमने पर्टिकुलर टाइम की बात करनी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी है, तो हमने एट प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। अगर हमें डेज या डेट की बात करनी है देन विल यूज़ ऑन, and if we have to talk about month, year and season then we'll use the preposition in. So next we have some examples like I shall go to Mumbai on Monday. So here Monday is a day, so we know that we use the preposition on with the day कि मैं Monday को मुंबई जाऊंगी। India has got freedom in 1947. 1947 is a year, so that's why we use the preposition in. इंडिया को कब फ्रीडम मिली थी 1947 में, तो with the year we use the preposition in. Then we have I met Mr. Sharma at 5 o'clock. When we talk about the particular time then we'll use the preposition at. Okay, then next is some other uses of in and at. अब हमें पहले पता चल गया कि in को हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं, ओके, कि वो कहाँ है। और at का भी हमने कर लिया कि हम at को टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। बट some other uses of in and at are like my uncle lives in Delhi. मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं। शी वॉज बॉर्न एट रामगढ़, वो उसका जन्म मीन्स कि रामगढ़ में हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हमने बड़े शहरों की या बड़े स्टेट्स की बात करनी है तो हमने प्रेपोजिशन इन यूज़ करनी है, और जब हमने छोटे किसी एरिया की या किसी छोटे विलेज की, छोटे सिटी की बात करनी है देन विल यूज़ प्रेपोजिशन एट। ओके, सो in is used for big cities and states and at is used for small villages and towns. Okay, then use of between and among. For example, the two brothers divided their property between themselves, कि दो भाइयों ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बीच में बांट ली। And next we have the three brothers divided their property among themselves. तो अब तीन भाइयों ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी आपस में बांट ली। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब हमने यहाँ पे दो ब्रदर्स की, दो लोगों की बात हो रही है तो प्रेपोजिशन बिटवीन यूज़ की गई है। ओके, बट जब मोर देन टू की बात की है, जब थ्री आ गई या थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब टू से ज़्यादा की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे थ्री ब्रदर्स है, तो प्रेपोजिशन अमंग यूज़ की गई है। ओके, सो इट मीन्स व्हेन we are to talk about the two people, the two persons, then we'll use the preposition between, and if the persons are more than two, okay, then we'll use the preposition among. The next is difference between in and into. अब इन एंड इनटू में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। सो यू हैव टू लिसन इट अटेंटिवली। द इन कब यूज़ करना है और इनटू कब यूज़ करना है। नेहा वॉज सिटिंग इन हर रूम, नेहा अपने कमरे में बैठी थी। मीरा वेंट इनटू द रूम, मीरा कमरे में गई। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो मीरा है वो अपने कमरे में बैठी थी, तो वो क्या थी, रेस्ट पोजीशन में थी। ओके, सो वो मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो मोशनलेस थी, वो बैठी हुई थी अपने कमरे में, इसलिए हमने यूज़ किया इन। मीरा वेंट इनटू द रूम, मीरा अपने कमरे में गई। तो अब मीरा जो है वो अपने कमरे में गई, हम ये नहीं कह सकते कि बैठी है। ओके, मतलब कि वो मोशन में है, वो मूव कर रही होगी, तो दैट्स वाई वी यूज्ड द preposition into. मीन्स the preposition in denotes position of rest inside something and the into denotes motion inside of something.
इनटू क्या है, मोशन को डिनोट करती है, और जो इन है वो रेस्ट पोजीशन को इंडिकेट करती है। ओके जी, जब कोई चीज़ टिकी हुई है, स्टिल है एक जगह पे, तो हमें इन यूज़ करना है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मूवमेंट में है, मोशन में है, देन विल यूज़ इनटू। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। अब ऑन एंड अपॉन में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट इज द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो बुक जो है वो मूव तो कर नहीं रही होगी, वो टेबल पे स्टिल होगी, तो दैट इज़ वाई द preposition on is used. Then next we have the cat jumped upon the wall, कि कैट ने वॉल के ऊपर से जंप किया। तो अब यहाँ पे जो कैट है उसने जंप किया, तो जब वो जंप कर रही है तो वो मोशन में है, वो मूवमेंट में है, वो मूव कर रही है, टिकी नहीं होगी एक सरफेस पे, तो दैट इज़ वाई द preposition upon is used. Okay, so it means that the preposition on denotes position of rest on the surface, ये rest position को denote करती है on preposition, but the preposition upon denotes motion, ये गति को indicate करती है। okay जी, so this is the difference between the on and upon. Then next there are some more prepositions like near, down, from, to, by, for, after, above, among, with, before, below, during, between, without. So this is all about your prepositions. So for better understanding, you can read the page number 59 and 60 of your English grammar book, and subscribe this channel for getting your homework daily. Thank you so much. Have a nice day.